کسی وقت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبدل کریم نام کا ایک محنتی کسان اپنی بیوی اور بیٹے فیضان کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی زمین تھی جس پر وہ گنا اگاتے، رس نکالتے اور گڑ پکاتے۔ سردیوں کی ٹھنڈی ہواؤں میں دن رات کھیتوں میں کام کرنا ان کی زندگی کا معمول تھا۔ عبدل کریم ہمیشہ گڑ خود بازار لے کر جاتا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ فیضان ابھی چھوٹا ہے اور بازار کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتا۔ ایک دن وہ گڑ بیل گاڑی میں لوڈ کر کے روانہ ہوا۔ بازار میں پہنچ کر گاڑی کھڑی کی اور گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک تاجر، سیٹھ شفیق اللہ، وہاں سے گزرا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی نے گڑ والی کھیر بنانے کو کہا تھا، تو وہ عبدل کریم کے پاس آ کر بولا، بھائی، کیا بیچ رہے ہو؟ عبدل کریم خوش ہو کر بولا، جناب، آج ہی کا خالص گڑ ہے، اب چاہیں تو سستے داموں دے دوں گا۔ سیٹھ کو عبدل کریم بہت بھولا لگا۔ اس نے کہا، پوری گاڑی کا گڑ کتنے میں دو گے؟ عبدل کریم خوش ہو گیا، جلدی سودا ہو جائے گا، اس امید میں بولا، 500 روپے دے دو، سب لے جاؤ۔ سیٹھ نے فوراً 500 روپے نکالے اور کہا، تو پھر یہ سب میرے گھر پہنچا دو۔ عبدل کریم نے نیک نیتی سے سیٹھ کو بھی گاڑی پر بٹھا لیا اور اس کے گھر روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے تو عبدل کریم بولا، جناب، ذرا جلدی گاڑی خالی کروا دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ سیٹھ شفیق اللہ ہنسا اور بولا، کون سی گاڑی؟ تمہیں تو پوری گاڑی کے 500 روپے دے چکا ہوں، اب یہ سب میرا ہے۔ عبدل کریم نے حیرت سے کہا، جناب، میں نے تو صرف گڑ کے دام بتائے تھے، گاڑی تو میری ہے۔ سیٹھ بولا، میں نے تو پوچھا تھا پوری گاڑی کا کیا دام ہے، تم نے خود کہا 500، اب زبان سے نہ پھرنا۔ پھر سیٹھ نے نوکروں کو آواز دی۔ انہوں نے عبدل کریم کے کپڑے اتروائے، اسے دھکیل کر باہر نکال دیا۔ عبدل کریم بےعزتی کی حالت میں سارا دن جنگل میں چھپا رہا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اپنے گھر واپس آیا تو بیوی اور بیٹے فیضان نے اس کی حالت دیکھ کر چیخ ماری، چادر اڑائی اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ عبدل کریم نے آنسو بھری آنکھوں سے سارا قصہ سنایا کہ کس طرح اس تاجر نے اس کی سادگی کا فائدہ اٹھایا اور صرف 500 روپے میں اس کی عزت بھی خرید لی۔ فیضان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے کہا، ابا جی، کل میں جاؤں گا بازار، نہ صرف اب کی گاڑی واپس لاؤں گا بلکہ عزت کا بدلہ بھی لوں گا۔ صبح سویرے جب پوری بستی ابھی نیند میں تھی، فیضان اٹھ کر تیار ہو گیا۔ باپ کے دکھ کو اس کے دل نے جذب کر لیا تھا۔ اس نے پڑوسی سے ایک بیل گاڑی ادھار لی، اس میں خود گڑ تیار کیا اور سارا سامان گاڑی میں رکھ کر وہی بازار جا پہنچا جہاں کل اس کے باپ عبدل کریم کو ذلیل کیا گیا تھا۔ فیضان بالکل وہیں کھڑا ہو گیا جہاں سیٹھ نے چالاکی سے اس کے باپ کی گاڑی ہتھیائی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دور سے سیٹھ شفیق اللہ اپنے مغرور انداز میں آتا دکھائی دیا۔ اس کی چال، اس کے کپڑے اور چہرے پر سجی مکاری نے فیضان کو پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہ لگایا۔ سیٹھ قریب آ کر رک گیا۔ فیضان نے نرمی سے کہا، السلام علیکم جناب، تازہ خالص گڑ ہے، چکھ لیجئے۔ سیٹھ نے دل میں سوچا، واہ، کل باپ کو بے وقوف بنایا، آج بیٹے کی باری ہے، یہ تو اور بھی سادہ لگ رہا ہے، اب کی بار نہ صرف گڑ بلکہ گاڑی بھی ہاتھ لگے گی۔ سیٹھ نے پوچھا، بھائی، یہ پوری گاڑی کا کیا دام ہے؟ فیضان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس جناب، ایک مٹھی بھر روپے دے دیجئے، سودا اب کا۔ سیٹھ کے چہرے پر فتح کی چمک آ گئی۔ اس نے دل میں حساب لگایا، ایک مٹھی میں 10 کے نوٹ رکھ کر 100 روپے دے دوں گا اور ساری گاڑی میری ہو جائے گی۔ سیٹھ بولا، سودا منظور ہے، مگر پیسے میں گھر جا کر دوں گا، گاڑی میرے گھر پہنچا دو۔ فیضان خاموشی سے تیار ہو گیا۔ جب دونوں سیٹھ کے گھر پہنچے تو سیٹھ نے گاڑی اندر لگوائی، جیب سے 10 کے نوٹ نکالے، مٹھی میں دبائے اور فیضان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو مٹھی بھر دام اور گاڑی اب میری ہوئی۔
फैजान ने अदब से कहा, जनाब, ये दाम तो गुड़ के हैं, गाड़ी तो मेरे बाप की थी। सेठ ने अक्कड़ कर कहा, क्या कह रहे हो? तुमने खुद कहा था कि एक मुट्ठी में पूरी गाड़ी दे दूंगा। फैजान ने संजीदगी से कहा, नहीं जनाब, जो कहा था वही मांग रहा हूं। गुड़ बेचा है, गाड़ी नहीं। गाड़ी तो मेरी रोजी रोटी का वसीला है। सेठ का चेहरा सुर्ख हो गया, दांत पेश कर बोला, अगर ज्यादा बात की तो तुम्हें भी तुम्हारे बाप की तरह जलील करके निकाल दूंगा। फैजान ने आहिस्तगी से जेब से चाकू निकाला और कहा, सेठ जी, मैं गाड़ी आपके पास छोड़ रहा हूं, लेकिन बदले में आपकी ये मुट्ठी साथ ले जाऊंगा। सेठ कांपने लगा, ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा। फैजान ने मुट्ठी को मजबूती से थामा और कहा, अपने मेरे बाप की गाड़ी सिर्फ एक मुट्ठी के बदले हड़प ली थी, अब ये मुट्ठी मेरी है। चाकू तेज था और नियत सच्ची। जैसे ही फैजान ने हाथ पर दबाव डाला, सेठ दर्द से चीख पड़ा। गिड़गड़ाते हुए बोला, खुदा के वास्ते, जो चाहिए ले जाओ, बस छोड़ दो। फैजान ने सख्त लहजे में कहा, पहले वो गाड़ी वापस दो जो कल तुमने अब्दुल करीम से छीनी थी, और हां, अब तुम्हें मुझे 2000 रुपए माहाना तनख्वाह पर नौकरी देनी होगी। सेठ बेबस हो गया। उसने गाड़ी भी वापस की, 2000 रुपए गुड़ के दिए और नौकरी की हामी भी भर ली। फैजान 2 बैल गाड़ियां लेकर घर वापस आया। अब्दुल करीम ने बेटे को दूर से आते देखा तो खुशी से बेकाबू हो गया। पूछा, बेटा, सब खैरियत से तो है? फैजान ने सारी कहानी सुनाई। नौकरी की बात सुनकर बाप ने फिक्रमंदी से कहा, बेटा, वो सेठ बदले का आदी है, होशियार रहना। फैजान ने मुस्करा कर जवाब दिया, अब्बाजी, अगर वो शेर है तो मैं सवा शेर हूं। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि फैजान सेठ शफीक अल्लाह के घर काम पर जा पहुंचा। सेठ ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि इस लड़के को इतना तंग करेगा कि ये खुद ही भाग जाएगा। सेठ ने तंजिया लहजे में कहा, फैजान, आज 2 खेत जोतना है, शाम को लकड़ियां भी लानी हैं चूल्हे के लिए। फैजान खामोशी से निकल गया। खेतों की तरफ जाने के बजाय एक बड़े दरख्त के नीचे जाकर सो गया। शाम होने से कुछ पहले वो उठा, 2-4 टुकड़े किए, लकड़ियां बांध कर सर पर रखी और वापस आ गया। सेठ ने इसे खाने को सिर्फ 1 मुट्ठी चावल और 1 चम्मच दाल दी। साथ ही कहा, यही यहाँ की तनख्वाह है, रहना है तो खाओ, वरना निकल जाओ। फैजान ने चुपचाप चावल खाए, पानी पिया और अपने कमरे में चला गया। मगर रात को भूख ने इसे सोने ना दिया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे। थोड़ी देर करवटें बदलता रहा, फिर चुपके से सहन में जाकर गाय के बाड़े में दाखिल हुआ। वहां एक गाय का बच्चा रस्सी से बंधा हुआ था। फैजान ने बिछड़े को खोल दिया, वो फौरन अपनी मां के नीचे जाकर दूध पीने लगा। इससे गाय के थन में दूध आ गया। जैसे ही मौका मिला, फैजान ने बच्चे को दोबारा बांधा और सारा दूध खुद पी गया। पेट भरने के बाद नींद भी खूब आई। अगली सुबह सेठ दूध निकालने आया, मगर थन बिल्कुल खाली थे। हैरत में पड़ गया। जो ही गाय के करीब हुआ, गाय ने एक जोरदार लात मारी और वो पीछे जा गिरा। ये मामूल रोज बन गया। फैजान रात को बच्चे को छोड़ता, गाय दूध देती, वो पीता और दिन भर काम करता। मगर वो कमजोर होने के बजाय और ज्यादा तंदुरुस्त लगने लगा। सेठ हैरान रह गया, ये लड़का 1 मुट्ठी चावल खाता है, सारा दिन काम करता है और फिर भी ठीक कैसे है? इसे क्या मालूम था कि उसकी गाय का सारा दूध तो फैजान के पेट में जा रहा है। कुछ दिन बाद सेठ की बीवी अपने मैके चली गई। महीना गुजर गया, वो वापस ना आई। अब सेठ अकेला हो गया। बोरियत और तन्हाई में वो घुलने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि खुद बीवी को वापस लाएगा। उसने कहा, फैजान, मेरे साथ चलना है, बीवी को लेने जा रहे हैं। सिर्फ एक घोड़ा था जिस पर खुद सेठ बैठा और फैजान को पैदल साथ ले लिया।
रास्ते में दिल में सोचता रहा, ये लड़का थक कर मर जाएगा और मैं आराम से ससुराल पहुंचूंगा। मगर सेठ को क्या खबर थी कि ये लड़का वही है जो चालाकी में इससे भी 2 कदम आगे है। कुछ दूर जाकर सेठ थक गया और एक दरख्त के नीचे लेट गया। उसने फैजान से कहा, जरा घोड़े का ख्याल रखना, मैं थोड़ा आराम करता हूं। थोड़ी ही देर बाद कुछ काफले वाले वहां से गुजरे। फैजान ने चुपके से घोड़े की दाम का एक छोटा सा हिस्सा काटा और घोड़ा उन काफले वालों को बेच दिया। फिर एक झाड़ी के पास जाकर बैठ गया। दाम का टुकड़ा एक चूहे के सुराख पर रख दिया, जैसे वो चूहा पकड़ रहा हो। कुछ देर बाद सेठ की आंख खुली। वो उठा, देखा तो घोड़ा गायब। फैजान झाड़ी के पास बैठा था, हाथ में दाम पकड़ी हुई थी। सेठ गुस्से से बोला, फैजान, मेरा घोड़ा कहाँ गया? फैजान ने मासूमियत से कहा, सेठ जी, घोड़ा तो चूहे के बिल में घुस गया। बड़ी मुश्किल से इसकी दाम पकड़ रखी है, अकेला खींच नहीं पा रहा, अब भी जोर लगा। सेठ आग बगूला हो गया, मगर जब दम खींची तो सिर्फ दाम हाथ में रह गई। ये क्या मजाक है? फैजान ने जवाब दिया, अपने तो कहा था अगर तुम्हें निकालूं तो नाक कान काट कर निकालूंगा। तो सोचा, घोड़ा दाम दे गया। सेठ कुछ ना बोल सका, मजबूर होकर पैदल चलना पड़ा। सेठ शफीक अल्लाह और फैजान अब पैदल सफर करने पर मजबूर थे। दिन भर की थकन के बाद रास्ते में एक और बाजार आया। सेठ ने वहां से दूसरा घोड़ा खरीदा, इस बार काला घोड़ा। वो उसे खास समझता था। दिल में कहा, अब की बार ना ये घोड़ा गायब होगा, ना मैं बेवकूफ बनूंगा। कुछ दूर जाकर सेठ ने खाने के बाद घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, फैजान, ये घोड़ा बहुत खास है, उसे खूब रगड़ रगड़ कर नहलाना, मील बिल्कुल साफ होनी चाहिए। फैजान खामोशी से बाजार गया और घोड़ा बेच कर वापस आ गया, लेकिन इस बार वो एक सफेद खरगोश साथ ले आया। जब सेठ की आंख खुली, उसने देखा कि फैजान हाथ में खरगोश पकड़े बैठा है। फौरन बोला, फैजान, घोड़ा कहाँ है? फैजान निहायत मासूमियत से बोला, सेठ जी, आपने कहा था कि घोड़े को खूब रगड़ना, तो इतना रगड़ा कि इसका काला रंग निकल गया और वो सुकड़ कर ये खरगोश रह गया। सेठ के दांत गुस्से से बजने लगे, मगर अब वो कुछ कर ना सका। आखिरकार दोनों फिर पैदल चल पड़े। ससुराल करीब था, मगर सेठ भूख और कमजोरी से निढाल हो चुका था। घोड़े बेचने में जो पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे और खाने पीने का सामान भी। सेठ ने बेबस होकर कहा, फैजान, जा मेरे ससुराल इत्तला दे आके दामाद आ रहा है, वो लोग मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करे। फैजान रवाना हुआ और ससुराल पहुंचते ही सेठ की सास ने फिक्रमंदी से पूछा, बेटा, शफीक अल्लाह खैरियत से तो है? फैजान ने संजीदगी से जवाब दिया, माई, वक्त अच्छा नहीं है, सेठ जी को सख्त पेट की खराबी है। उधर सेठ को खबर नहीं थी कि इसके दामाद बनने के फखर को पेट की खराबी में तब्दील करके ससुराल में ऐलान हो चुका है। जब दोनों ससुराल पहुंचे तो सब ने अलग अलग बर्तनों में खाने लगा। फैजान के लिए खीर, हलवा, पूरी, रायता और सेठ के लिए सिर्फ खिचड़ी। सेठ को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसने बर्दाश्त किया, क्योंकि अपना क्या इंसान को आखिर भुगतना ही पड़ता है। रात को दोनों की चारपाइयां छत पर लगा दी गईं। फैजान मजे से खाकर खर्राटे मारने लगा और सेठ करवटें बदलता रहा, भूखा प्यासा। आखिरकार उसने फैजान को झंझोड़ कर कहा, यार, तूने तो खा पी कर खर्राटे लिए और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। फैजान ने आंख मिलते हुए एक तरकीब सोची। छत में एक पुराना सुरंग नुमा सुराख था जिसे गड्ढे मिला कहते थे। पुराने वक्त में गल्ला नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल होता था। फैजान ने सेठ की कमर में रस्सी बांधी और कहा, सेठ जी, रसोई में नीचे खाना पड़ा है, नीचे जाकर खा लीजिए। जब पेट भर जाए तो रस्सी हिला दीजिए, मैं ऊपर खींच लूंगा। सेठ खुशी खुशी नीचे उतर गया।
वहां जाकर खाने पर ऐसे टूट पड़ा जैसे बरसों का भूखा हो। जब पेट भर गया तो उसने रस्सी हिलाकर कहा, फैजान, ऊपर खींच ले यार। मगर फैजान गहरी नींद में जा चुका था। इसी वक्त सेठ की सास पानी पीने रसोई के पास आई तो अंदर से आवाजें सुनाई दें, खींच खींच, ऊपर खींच। बेचारी घबरा गई, भागकर सब घर वालों को जगाया। सब समझे शायद कोई भूत रसोई में आ गया है। सब ने दरवाजे के पास कान लगा दिए। अंदर से अब भी आवाज आ रही थी, वो खींच, जल्दी कर। रसोई के बाहर सब घरवाले और मोहल्ले के लोग जमा हो चुके थे। सब कान लगाकर सुन रहे थे। सेठ शफीक अल्लाह नीचे से आहिस्ता आवाज दे रहा था और बेखबरी में समझ रहा था कि बस फैजान अभी खींच लेगा। इसी दौरान फैजान जाग गया। जैसे ही हालात की संगीनी का अंदाजा हुआ, वो लपक कर उठा, रस्सी खींचना शुरू की और थोड़ी ही देर में सेठ को छत पर खींच लिया। जब नीचे का दरवाजा खोला गया, रसोई खाली थी। सब हैरान थे कि आवाजें आ रही थीं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सब अपने अपने कमरों में वापस चले गए, मगर तकदीर ने अभी एक और चाल बाकी रखी थी। रात के आखिरी पहर सेठ शफीकुल्लाह को अचानक पेट में शदीद दर्द होने लगा। वो उठा, फैजान को झंझोड़ कर जगाया, उठ, मेरे साथ खेतों तक चल, बहुत जोर का पेट खराब है। फैजान ने आधी नींद में आंखें मिलते हुए कहा, सेठ जी, बाहर जाने की क्या जरूरत है? यहां पास ही एक मिट्टी की हांडी रखी है, इसमें काम निपटा लीजिए, सुबह में ले जाकर ठिकाने लगा दूंगा। सेठ ने चाहा ना चाहा, लेकिन मजबूरी थी। चादर ओढ़ी, हांडी में फारिग हुआ और सुबह जब सूरज निकला, उसने फौरन फैजान को जगाया, उठ, ये हांडी ले जा, वरना कोई देख लेगा तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। फैजान खर्राटे मार रहा था। सेठ ने इसे हिलाया, झंझोड़ा, मगर वो ना उठा। अब इज्जत का सवाल था। सेठ ने चादर ओढ़ी, हांडी को सर पर रखा और दबे पांव सीढ़ियां उतरने लगा। जो ही वो आंगन में पहुंचा, फैजान ने छत से उसे देख लिया। उसने मौका को गनीमत जाना, एक मोटी लकड़ी उठाई और दबे पांव नीचे उतरा। जब सेठ बाहर निकलने को ही था, फैजान ने पूरी ताकत से पूरे गांव में चीख मारी, चौड़ चौड़, अरे देखो चौड़ हांडी लिए भाग रहा है। गांव के कुछ लोग जो सुबह सवेरे उठ चुके थे, आवाज सुनकर डंडे लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा एक शख्स चादर ओढ़े, सर पर हांडी लिए जा रहा है। सब ने ललकारा, बस यही है चौड़। और फिर दिन ना दिन सेठ शफीक अल्लाह पर लाठियां बरसने लगीं। कोई लात मार रहा था, कोई थप्पड़, कोई डंडा। सेठ की चीखें निकल गईं, मैं चौड़ नहीं, मैं सेठ शफीक अल्लाह हूं। मगर किसी ने सुना नहीं। शोर इतना बढ़ गया कि सेठ का ससुर, दामाद और हमसाए भी जमा हो गए। फैजान ने आखिरी वार किया, अरे सब लोग तो यही हैं, पर हमारे सेठ जी कहाँ गए? सब हैरान हुए, हाँ वाकई, दामाद जी तो शोर सुनकर गायब हो गए। चादर खींची गई और नीचे से निकला शर्म से लाल, मार से नीला पड़ा सेठ शफीक अल्लाह, और सर पर वही हांडी। महफिल में हंसी का तूफान आ गया। सब लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए। सेठ शफीक अल्लाह महफिल के बीच खड़ा था, चेहरा शर्म से झुका हुआ, जिस्म नीला पड़ा हुआ और सर पर बदबूदार हांडी। इसकी खुदसाख्ता इज्जत, घमंड और तकब्बुर सब मिट्टी में मिल चुका था। सास और ससुर, बीवी और पूरा मोहल्ला हंसी के कहकहों में डूबा था, मगर सेठ की आंखों में सिर्फ पछतावा था। जैसे ही वो अपने कपड़े तब्दील करके वापस आया, फैजान ने धीरे से कहा, सेठ जी, जो पहली लात इस हांडी पर पड़ी थी, वो मेरी थी। सेठ के कदम वहीं रुक गए। फैजान ने मुस्कुराकर मजीद कहा, और जो सबसे पहले चीख मार कर चोट चोट का शोर मचाया था,
वो भी मैं ही था। सेठ की आंखों में आंसू आ गए, होंठ कपकपाई, आवाज भरा गई। फैजान, ये तूने क्यों किया? तुझे इससे क्या मिला? फैजान ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मुझे वही मिला जो अपने मेरे बूढ़े बाप अब्दुल करीम को दिया था, जब अपने इसे 500 रुपए में सब कुछ खरीद कर जंगल में नंगा छोड़ दिया था। सेठ की गर्दन नीचे हो गई। वो जमीन को घूरने लगा जैसे पछतावे में धंस गया हो। फैजान, मुझे मुआफ कर दो, खुदा के लिए, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। फैजान ने संजीदगी से कहा, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा सेठ जी। अपने वदा किया था कि अगर मैं नौकरी छोड़ूं तो आप मुझे नाक कान काट कर निकालेंगे। सेठ के हाथ जोड़ गए। वो गिड़गिड़ा कर रोने लगा, नाक कान छोड़, जो मांगेगा दूंगा, बस मेरी इज्जत बख्श दे। फैजान ने एक आखिरी शर्त रखी, पहले वदा करो आज के बाद किसी गरीब, सीधे साधे या मेहनती इंसान को धोखा नहीं दोगे, न किसी का मजाक उड़ाओगे, और अभी के अभी मेरे हाथ पर वही 500 रुपए रखो जो तुमने मेरे बाप की इज्जत छीन कर दिए थे। सेठ ने फौरन 500 रुपए निकाले, कांपते हाथों से फैजान की हथेली पर रखे और शर्मिंदगी से सर झुकाकर बैठ गया। इसके बाद फैजान घर वापस आया। अब्दुल करीम दरवाजे पर खड़ा बेटे का चेहरा देखकर मुतमईन हो गया। उसके आंसू फख्र से बहने लगे। तूने बेटा होने का हक अदा कर दिया। उधर सेठ शफीक अल्लाह, अब वो सेठ ना रहा जो किसी की बेइज्जती करे या गुरूर करे। उसने वाकई दिल से तौबा की। वो किसी को धोखा न देता, किसी का मजाक न उड़ाता और बाजार में मेहनत से काम लेता। जो माँ बाप का दिल दिखाता है वो जिंदगी में कभी सुकून नहीं पाता। जो किसी गरीब को जलील करता है अल्लाह इसे दुनिया में ही रुस्वा कर देता है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज्जत, अक्ल और मौका सब कुछ अता करता है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत ही हमारे लफ्जों में जिंदगी भरती है।